Hello students, in the previous video we will studying about transpiration. So we have studied that plant absorb water constantly and continuously. Then we have studied two new terms, that is guttation and transpiration. So the loss of water in the form of vapor is called transpiration and the loss of water in the form of liquid is called guttation. Then the actual water loss during transpiration occur through three main sites: cuticle, stomata and lenticels. So today we are going to study about the types of transpiration one by one, that is cuticular, stomatal and lenticular. So coming to the next slide, फर्स्ट टाइप है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. क्यूटिकल is a layer of waxy substance, cutine present on the outer surface of epidermal cells of leaves and stems. जो लीव होता है, लीव को अगर हाथ में फिंगर्स के बीच में रख के रब करेंगे तो वी विल नोटिस दैट समथिंग इज़ वेरी वैक्सी टाइप. तो वो वैक्सी सब्सटेंस होता है क्यूटीन, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ लीव्स एंड स्टेम. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन अकर by simple diffusion and contributes 8 to 10% of the total transpiration. Cuticular transpiration, it is occurred by simple diffusion. Okay, we will underline it. It occurs by simple diffusion and it contributes 8 to 10% of the total transpiration. Then cuticular transpiration occur throughout the day. पूरे दिन में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है and its rate is inversely proportional to the thickness of cuticle. उसका रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल. मतलब जितना ज़्यादा थिक होगा क्यूटिकल उतना ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. देन second is lenticular transpiration. Lenticels are small raised structures. ये लोग small raised structures है composed of loosely arranged complementary cells. क्या है इनके पास? loosely arranged complementary cells. Each lenticell is a porous tissue consisting of cell with large intercellular space in the periderm of the secondarily thicked organ and the bark of woody substance and roots of dicotyledonous flowering plant. Each lenticell, see ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेल. तो हर लेंटिकल एक स्मॉल रेज्ड स्ट्रक्चर है जो कि लूज कॉम्प्लीमेंट्री सेल से बनता है. ईच लेंटिसेल, हर लेंटिसेल एक पोरस टिश्यू है. पोरस मतलब पोर्स प्रेजेंट है. पोरस टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ सेल विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस. उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा है. इन द पेरिडर्म ऑफ द सेकेंडरली थिकेंड ऑर्गन्स and the bark of woody substances and roots of dicotyledonous flowering plants. Clear? ये लेंटिसेल का स्ट्रक्चर है.
डिस्क्राइब lenticels आएगा अगर एग्ज़ाम में आया तो, that each lenticel is a porous tissue consisting of cells with large intercellular space in the periderm of the secondarily thickened organs and the bark of woody substems and roots of dicotyledonous flowering plants. Then lenticels are present in bark of old stem and pericarp of woody fruits. lenticels कहाँ present है? In bark of old stem. जो ओल्ड स्टेम्प होते हैं उनके बार्क में प्रेजेंट होते हैं lenticels हमारे. एंड पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट्स, पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट्स बट आर एब्सेंट इन लीव्स. लीव्स में lenticels एब्सेंट होते हैं. ओके, and they are present in the bark of old stem, and pericarp of woody fruits, but they are absent in leaves. Lenticular transpiration contributes only about 0.1 to 1.0% of total respiration. कितना respiration contribute करता है? Only about 0.1 to 1% of total transpiration. Lenticular cell is 0.1 to 1% of total transpiration and lenticular cell is 8 to 10% of total transpiration. ये 0.1 to 1 है. Then rate of lenticular transpiration is very slow. इसका rate is very slow, मतलब बहुत ही slow होता है lenticular transpiration and it also occur throughout the day. ये है structure of lenticell. Then ये हो गया हमारा फर्स्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, सेकंड हो गया लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, थर्ड है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन. तो स्टोमाटा आर माइन्यूट apertures formed of two guard cells and accessory cell. स्टोमाटा क्या है? माइन्यूट अपर्चर है, एक एकदम ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, जिसके इधर गार्ड सेल्स है. स्टोमाटा आर माइन्यूट अपर्चर formed of two guard cells and an accessory cell. They are located in the epidermis of young stem and leaves. उनका location is important, located in the epidermis of young stem and leaves. Leaves generally show more number of stomata, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स से होता है ना, ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस लीव्स से हो रहा है. तो लीव्स जनरली शो मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा इन द लोअर सरफेस. डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा ऑन लीव्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स mainly. Upon the distribution of stomata, leaves 3 types के होते हैं. फर्स्ट इज एपिस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक, एम्फीस्टोमेटिक. तो एपिस्टोमेटिक कहाँ होते हैं? ऑन अपर डर्मिस एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन हाइड्रोफाइट्स जैसे कि लोटस. हाइपोस्टोमेटिक कहाँ हो गए? ऑन लोअर डर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जैसे ज़ीरोफाइट्स, इसका एग्जाम्पल है नेरियम. एम्फीस्टोमेटिक दोनों साइड पे हो गए, ऑन बोथ साइड. एग्जाम्पल है मीसोफाइट्स एंड इसमें एग्जाम्पल है ग्रास. तो वी हैव स्टडीड समथिंग वेरी न्यू टुडे. डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा ऑन लीव्स 3 टाइप के होते हैं. एपिस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक एंड एम्फीस्टोमेटिक. एपी मतलब होता है अपर, हाइपो मतलब होता है लोअर,
एम्फी इज ऑन बोथ साइड. तो एपिस्टोमैटिक इज ऑन अपर एपिडर्मिस, hypostomatic is on lower epidermis, and amphistomatic is on both surface. इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रास. हाइपोस्टोमैटिक का एग्जाम्पल है नेरियम जीरोफाइट्स में. एपिस्टोमैटिक इज हाइड्रोफाइट्स, फॉर एग्जाम्पल लोटस. देन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन अकर only during daytime, exception desert plants. फिर 90 to 93% of total transpiration occur to stomata. 90 to 93% ये ट्रांसपीरेशन कंडक्ट करता है and it occur to stomata and that too during daytime only. क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादातर दिन में ही होता है, रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. सो ये भी एक रीज़न हो सकता है. एंड ये स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो है वो 90 to 93% है. फिर सेकेंड हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन था 0.1 to 1%. एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन है 8 to 10%. ये हो गया हमारा ट्रांसपीरेशन का स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पे. ओके, देन वी विल मूव to a new topic, that is structure of stomatal apparatus. Typical stomatal apparatus consists of two guard cell and accessory cell and stoma. Then there is a structure of stomatal apparatus. Typical stomatal apparatus consists of two guard cells, stoma and one accessory cell. Structure of guard cell है ये. गार्ड सेल के स्ट्रक्चर में एपिडर्मल सेल्स है, उसके बाद है सब्सिडियरी सेल्स, उसके इनर है इनर थिक वॉल सबसे अंदर, फिर न्यूक्लियस, एंड ये जो ओपनिंग है वो है स्टोमा पोर, एंड दिस इज़ अ गार्ड सेल. देन दिस इज़ ओपन एंड क्लोज स्टोमा. तो गार्ड सेल के अंदर बीच में है स्टोमेटल पोर एंड बाहर जो ग्रीन डॉट्स है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल and open and closed stoma. Then stomata are minute elliptical pores bounded by two kidney या dumbbell shaped guard cells. Guard cell is a type of epidermal tissue which may be called as modified epidermal parenchyma cell. They are kidney shaped in dicotyledons and dumbbell shaped in grasses. So we have studied here the structure of stomata. Okay, ये है हमारा स्टोमा का स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये है ओपनिंग स्टोमाटा, ये है क्लोज स्टोमाटा. ओके, यहाँ पे है ये किडनी शेप्ड के है, ये है गार्ड सेल्स, और उनके अंदर जो ग्रीन डॉट है ये वाले, ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट. तो वी आर स्टडिंग हियर अबाउट स्टोमा का स्ट्रक्चर, कि हाउ दे आर एक्चुअली आर. ओके, तो स्टोमाज आर माइन्यूट. माइन्यूट मतलब एकदम छोटे. इलेप्टिकल पोर्स बाउंडेड बाय टू किडनी और डम्बल शेप गार्ड सेल्स. क्लियर? स्टोमा के दो टाइप्स हैं, किडनी और डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स. देन गार्ड सेल इज अ टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू. Guard cell is a type of epidermal tissue
which may be called as modified epidermal parenchyma cell. गार्ड सेल को हम लोग मॉडिफाइड या एपिडर्मल पैरेन्काइमा सेल भी बोल सकते हैं. गार्ड सेल इज अ टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू. देन they are kidney shaped in dicotyledons and dumbbell shaped in grasses. किडनी शेप्ड होता है डाइकोटिलीडॉन्स में और डम्बल शेप होता है इन ग्रासेस. देन दिस इज आर किडनी शेप्ड एंड डम्बल शेप. डम्बल शेप इज इन ग्रास, किडनी शेप होता है इन डाइकोटिलीडॉन. तो एक बार इसको एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ना है. यह है एपिडर्मल सेल्स, उसके अंदर है सब्सिडियरी सेल्स, फिर है क्लोरोप्लास्ट, फिर ये हमारा गार्ड सेल, फिर आता है स्टोमेटल अपर्चर. ये वाला जो है वो क्या है, किडनी शेप में है स्टोमा, तो ये किडनी शेप. यहाँ पे देखो डम्बल शेप में है, इट इज़ डम्बल शेप्ड. इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रास. ओके, ग्रास में होते हैं और ये वाले होते हैं डाइकोटिलीडॉन में. रिमेंबर, ओके. तो इट्स वेरी इजी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू. देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन साइपरस both kidney and dumbbell shaped guard cells are present. अब ये साइप्रस क्या है, इसे गूगल करके इसका इमेज देख लेना. देन both kidney and dumbbell shaped cells are present in cypress. Then guard cells are living nucleated cell. न्यूक्लियस होता है ना, हम लोग ने पहले वीडियोस में देखा. गार्ड सेल के पास न्यूक्लियस होता है, तो वो लिविंग और न्यूक्लिएटेड सेल है विथ अनइवनली थिक वॉल्स. इसकी वॉल जो है वो थिक है एंड इट इज़ अनइवन. देन इनर वॉल होती है वॉल फेसिंग स्टोमा ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड inelastic. And the lateral wall is thin and elastic. Inner wall क्या है, गार्ड सेल लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल है. क्लियर. इनर वॉल मतलब वॉल फेसिंग स्टोमा, जो स्टोमा की तरफ फेस की गई है वॉल, ये वाली सब्सिडियरी वॉल सेल की जो वॉल है वो यहाँ पे था. हाँ, ये देखो इनर वॉल, ये अंदर वाली वॉल. ये अंदर वाली जो वॉल दिख रही है ना, ये है इनर वॉल. एंड और ये होगी उसकी आउटर वॉल. ये है एपिडर्मल सेल की, ये है आउटर वॉल. तो इनर वॉल जो है वो wall facing stoma of guard cell is thick and inelastic. And the lateral wall, जो lateral walls है वो thin and elastic है. Okay, inner wall is thick and inelastic, lateral wall is thin and elastic. Guard cell contain few chloroplast. थे छोटे छोटे से, तो गार्ड सेल के पास फ्यू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं विच आर केपेबल ऑफ पुअर फोटोसिंथेसिस. विच कैन डू, केपेबल है वो लोग पुअर फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके. गार्ड सेल हैव एबिलिटी टू चेंज देयर साइज एंड फॉर्म ड्यू टू विच stoma opens, widen or closes, narrows. गार्ड सेल के पास एबिलिटी है कि वो लोग अपना साइज़ एंड फॉर्म को चेंज कर सके. जैसे ओपन होते हैं तो वाइड होते हैं, क्लोज होते हैं तो नैरो होते हैं. तो लोग ने अपना साइज़ और शेप को चेंज किया
ओपन हुए तो लार्ज साइज़ के हुए, वाइडन हुए, क्लोज करेंगे तो नैरो साइज़ के हो गए एंड छोटे हो गए साइज़ में। तो ये है गार्ड सेल के बारे में पूरा स्ट्रक्चर। ओके, वी हैव स्टडीड दिस। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। बिना डायग्राम के ये आंसर लिखोगे तो कोई उसकी मायने नहीं रहेगी। डायग्राम्स पे ही मार्क्स मिलते हैं। एंड देन ये है स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, ये सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्टोमा इज एन इलेप्टिकल पोर। इलेप्टिकल है ना, स्ट्रेट है। इलेप्टिकल पोर फॉर्म्ड ड्यू टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ गार्ड सेल। एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से स्टोमा फॉर्म हुआ है। ओके, स्टोमा एक इलेप्टिकल पोर है एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ गार्ड सेल। इट इज़ थ्रू द स्टोमा एक्सेस वाटर इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यही चीज़ तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि स्टोमा में क्या हो रहा है, एक्सेस वाटर, ट्रांसपीरेशन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो एक्सेस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन स्टोमा। फिर ये है हमारा स्टोमा का स्ट्रक्चर। एक है एसेसरी सेल्स कौन से हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है। एसेसरी सेल क्या है? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल and they are surrounding the guard cell. Their number is variable and are the reservoirs potassium ions होते हैं। उनके पास एक तो उनके नंबर वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब डिफरेंट होते हैं, हम लोग स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है। एंड दे आर द रिजर्वायर, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। रिजर्वायर है मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनके पास पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है। देन दिस एसेसरी सेल, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। हम लोग ने सब्सिडियरी सेल्स के बारे में पढ़ा है पहले। ये है सब्सिडियरी सेल्स, दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये है सब्सिडियरी सेल्स। तो ये सब्सिडियरी सेल्स ये इधर प्रेजेंट है। ये है एसेसरी सेल्स। सो ये हो गया हमारा सब्सिडियरी सेल के बारे में भी कंप्लीट। दे आर द रिजर्वायर ऑफ पोटेशियम आयन। ये नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आएगा कि एसेसरी सेल इज रिजर्वायर ऑफ डैश आयंस। ओके, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऐसे सब ऑप्शंस आते हैं। तो रिजर्वायर ऑफ पोटेशियम आयंस ये इम्पोर्टेंट है। देन ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। मतलब इसका मतलब क्या है कि कैसे स्टोमा ओपन होता है एंड कैसे स्टोमा क्लोज होता है, एंड क्लोज और ओपन होने में क्या क्या उसको ज़रूरत है। ओके, देन स्टूडेंट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज़ कंट्रोल्ड बाय अ टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स की ओपनिंग है या गार्ड सेल के जो स्ट्रक्चर है, वो गार्ड सेल ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त गार्ड सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। ओके, दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग डे टाइम, ओके, ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, और जो टर्गर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द थिन वॉल ऑफ गार्ड सेल,
एक टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द थिन वॉल, मतलब जो थिन वॉल है गार्ड सेल की उस पे टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होता है. बीइंग इलास्टिक एंड थिन, लैटरल वॉल्स आर स्ट्रेच्ड आउट. क्योंकि वो इलास्टिक और थिन है तो टर्गर प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो स्ट्रेच्ड होगा लैटरली. उसके जो लैटरल वॉल्स है, मतलब ये लैटरल हो गया सीधा, तो ये लैटरल वॉल जो है वो स्ट्रेच्ड होने लगेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, टर्गर प्रेशर है जो गार्ड सेल्स के ऊपर है. ये फर्स्टली देखो क्या होता है. ओके, ये है हमारा डे टाइम का स्टोमा. ये जो गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स जो है इनके अंदर वाटर पूरी तरीके से फिल हो जाता है. ओके, और ये स्वेल हो जाते हैं. और ये स्वेल होता है ना, तो ये सीधे थे. अब जब वो लोग इस तरीके से पीछे की तरफ होते हैं, ओके, तो पीछे की तरफ होते हैं तो स्टोमा का ओपनिंग हो रहा है, स्टोमा ओपन हो रहा है, अपने आप को वो लोग स्ट्रेच कर रहे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हो रहा है. वो प्रेशर है टर्गर प्रेशर. तो यही चीज़ है हमारे इसमें कि बीइंग इलास्टिक एंड थिन, lateral walls are stretched out, and due to kidney or dumbbell like shape, inner thick walls are pulled apart to open widen the stoma. जो किडनी है या फिर बेल शेप, डम्बल बेल लाइक शेप है, ड्यू टू किडनी. 1 minute स्टूडेंट्स. ड्यू टू किडनी और डम्बल बेल लाइक शेप, जो इनर थिक वॉल्स है दे विल बी पुल्ड अपार्ट. वो लोग एक दूसरे से दूर की तरफ पुल हो गए. एंड दे विल ओपन और वाइडन द स्टोमा. एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त क्या होगा, ये गार्ड सेल बिकेम फ्लैसिड ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस. अब सारा पानी चले गया, एक्सोऑस्मोसिस हो गया. फ्लैसिडिटी क्लोजेस द स्टोमा ऑलमोस्ट completely. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट क्लोजेस द स्टोमा completely. तो फ्लैसिडिटी closes the stoma completely. Endoosmosis and exoosmosis occur due to diurnal changes in osmotic potential of guard cells. देखो, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस ये कब होता है? इट अकर ड्यू टू diurnal changes in osmotic potential of guard cells. ऑस्मोटिक पोटेंशियल में चेंजेस की वजह से एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है. एंड डिफरेंट थियोरीज आर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन डायurnal चेंजेस इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल. तो स्टोमा ओपन होता है डे के टाइम पे, क्लोज होता है नाइट टाइम पे. इतना तो क्लियर हो गया. देन उसके बाद डे टाइम में क्यों वो टर्जिड होता है? ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस. और नाइट टाइम में एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है. डे टाइम पे वो पुल होता है ड्यू टू टर्गर प्रेशर. नाइट टाइम पे वो गार्ड सेल जो है उसके वो फ्लैसिड हो जाते हैं, इसलिए पुल हो रहा है. एंड फ्लैसिडिटी जो है इट क्लोजेस द स्टोमा ऑलमोस्ट completely. And then endoosmosis and exoosmosis occur due to diurnal changes in osmotic potential of guard cell. एंड ये चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारी थियोरीज थी, जो कि थ्योरी आई कि स्टोमाटा ऐसे होता है वैसे होता है. हम लोग ने इसके बारे में इन 10th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड दोनों में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, इसलिए इधर आप लोगों को 12th में इतना नहीं दिया. ओके, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, ओपनिंग इज़ इन डे टाइम एंड क्लोजिंग इज़ एट नाइट टाइम. तो ये हो गया हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड.
हियर इट इज़, वाई आर स्टोमा ओपन एंड क्लोज। तो मैंने जो भी बताया, देखो डे टाइम है, नाइट टाइम है, गार्ड सेल जो है वो स्वलन हो रहे या टर्जिड हो रहे, और बाजू में गार्ड सेल जो है वो श्रंकन हो रहे या फ्लैसिड हो रहे। देन उसके बाद अंदर है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, न्यूक्लियस। ये डे टाइम का स्टोमा ओपन है और ये स्टोमा क्लोज्ड है। तो दिस आर द स्टोमाटा ओपन एंड व्हेन दे आर क्लोज्ड का स्ट्रक्चर। ओपन होता है ड्यू टू टर्गर प्रेशर बिकॉज दिस गार्ड सेल्स आर स्वेलन अप। ये लोग फूल जाते हैं, गार्ड सेल फूल जाते हैं तो लेटरल डायरेक्शन में अपने आप को स्ट्रेच करने लगते हैं, और नाइट टाइम पे इनका एक्सोस्मोसिस हो जाता है तो फ्लैसिड हो जा रहे, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लैसिडिटी ओके गार्ड सेल जो है वो श्रंक हो जाते हैं एंड they are shrunken and the stoma are closed completely. Okay, then moving to the next slide, according to the starch sugar interconversion theory, okay, according to starch sugar interconversion theory, which is given by Stewart in 1964. According to this theory, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, मतलब जो स्टार्च जो है, जो शुगर है, जो ग्लूकोज था वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, ये जो थ्योरी है इट इज़ पुट फोर्थ बाय स्टेवर्ड इन 1964 एंड ड्यूरिंग डे टाइम, according to this theory, during daytime enzyme phosphorylase converts starch to sugar. एंजाइम फॉस्फोराइलेस, ये एंजाइम का नाम याद रखना पड़ेगा। एंजाइम फॉस्फोराइलेस कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर, thus increasing osmotic potential of guard cell। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है गार्ड सेल का वो इंक्रीज हो रहा है, एंड क्लोजिंग एंट्री ऑफ वाटर, thereby guard cells are stretched and stoma widen। ये एंजाइम प्रेजेंट है फॉस्फोराइलेस, एंड ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, ओके, एंड देन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है वो, एंड वहाँ पे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल वी आर टॉकिंग अबाउट गार्ड सेल, ओके, वहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजिंग एंड क्लोजिंग एंट्री ऑफ वाटर, और जो वाटर का एंट्री है वो क्लोज हो रहा है, and thereby guard cells are stretched and stoma widens। जो गार्ड सेल्स हैं हमारे वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, क्योंकि उधर ऑस्मेटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो जो गार्ड सेल है वो स्ट्रेच होते हैं और जो स्टोमा है वो वाइडन होता है, ओके। देन द रिवर्स रिएक्शन अकर्स एट नाइट। नाइट में क्या होता है, शुगर जो बना था अब वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, ओके, ब्रिंगिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ स्टोमा। द रिवर्स रिएक्शन अकर्स एट नाइट ब्रिंगिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ स्टोमा। तो ये है अपना इसका, ये है स्टार्च, ओके, ये फॉस्फोराइलेस के डे में प्रेजेंट होने से स्टार्च कन्वर्ट हो गया शुगर में, तो स्टोमा अब यहाँ पे ओपन हो रहा है, बट व्हेन एट नाइट टाइम ये शुगर वापस से स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, तो
स्टोमा क्लोज हो रहा है. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. फॉस्फोराइलाइज एंजाइम का नाम याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. According to the theory of proton transport, okay, according to the theory of proton transport, Leavitt 1974, stomatal movement occur due to transport of proton, hydrogen and potassium ions. स्टोमैटल मूवमेंट हो रहा है, ओके, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्रोटॉन्स को, हाइड्रोजन एंड पोटाशियम को. एंड ड्यूरिंग डे टाइम स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड. स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग डे टाइम. एंड मैलिक एसिड डिसोशिएट्स टू फॉर्म मैलेट. अब मैलिक एसिड मैलेट में फॉर्म होगा. एंड protons are transported to subsidiary cells and potassium ions are imported for them. Protons are transported to subsidiary cells. subsidiary cells के बारे में हमें पता है. तो ये प्रोटॉन अब सब्सिडियरी सेल के पास जाएगा एंड वहाँ पे जो पोटेशियम आयन था वो इम्पोर्ट होगा फ्रॉम देम. अब potassium malate is formed that increases osmolarity and causes endoosmosis. potassium malate बन गया. मैलिक एसिड डिसोशिएट करती है टू फॉर्म मैलेट. अब उधर पोटाशियम जो था वो इम्पोर्ट हो रहा है, तो अब पोटाशियम मैलेट बन गया. तो ये पोटाशियम मैलेट क्या करेगा? इट इज़ फॉर्म दैट इंक्रीजेस ऑस्मोलैरिटी and causes endoosmosis. Okay, uptake of potassium ions is always accompanied with chlorine ions. Okay, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. potassium ion is always accompanied by chlorine ions. At night, uptake of potassium and chlorine ion is prevented by abscisic acid. नेम स्टूडेंट्स, नेम याद रखना है. एब्सिसिक एसिड के वजह से इन दोनों का अपटेक नाइट टाइम पे प्रिवेंट होता है. इट इज़ प्रिवेंटेड. एंड चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ गार्ड सेल्स. ड्यू टू दिस गार्ड सेल बिकम हाइपोटोनिक एंड देयरबाय बिकम फ्लैसिड. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली गार्ड सेल जो है हमारा वो हाइपोटोनिक हो जा रहा है एंड देयरबाय बिकम फ्लैसिड. ओके, तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करते हैं इसको. पहला क्या होता है? स्टोमैटल मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन एंड पोटाशियम आयन. फिर वहाँ पे स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू मैलिक एसिड. देन मैलिक एसिड डिसोशिएट टू फॉर्म मैलेट. अब ये जो प्रोटॉन है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू सब्सिडियरी सेल एंड पोटेशियम आयन जो है वहाँ से इंपोर्ट होता है. जब पोटेशियम आयन इंपोर्ट हुआ तो पोटेशियम मैलेट फॉर्म हो गया एंड इट इज़ फॉर्म दैट इंक्रीजेज osmolarity and it causes endoosmosis. And uptake of potassium ion is always accompanied with chlorine ions. And at night, uptake of potassium and chlorine ion is prevented by abscisic acid. You have to remember the name, student. Abscisic acid. And this abscisic acid change the permeability of guard cell. guard cell की permeability को change करता है. And due to this guard cell become hypotonic and thereby become flaccid. तो ये हो गया हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हम लोग ने 2 थियोरीज पढ़ा. ओके, पहला स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी पढ़ा और दूसरा
theory of proton transport पढ़ा, which is given by Leavitt in 1974 and it is given by Stewart in 1964. Then we will study the significance of transpiration. उसमें advantages and disadvantages क्या है. Advantages की बात करेंगे तो it remove excess of water. True, excess of water निकल जाता है. Then it helps in the passive absorption of water and mineral from soil. Then it helps in the ascent of sap. Fourth, as stomata are open, gaseous exchange required for photosynthesis and respiration is facilitated. Fifth, it maintains turgor of the cell. Sixth, transpiration helps in reducing the temperature of leaves and in imparting cooling effects. Okay, first क्या है, excess water remove हुआ. Then it helps in the passive absorption of water, minerals from soil. Then it helps in the ascent of sap. Ascent of sap मतलब वो जो पानी ऊपर की तरफ जाता है उसमें भी तो हेल्प करता है ना वो. तो फर्स्ट हुआ रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर. इट हेल्प्स इन द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. देन इट हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप. ये तीनों पॉइंट तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर है. देन एज स्टोमेटा आर ओपन, स्टोमेटा जब ओपन होगा तो गैसियस एक्सचेंज रिक्वायर्ड. जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज रिक्वायर होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज फैसिलिटेटेड. ओके, स्टोमेटा ओपन हुआ, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज़ फैसिलिटेटेड. गैसियस एक्सचेंज के वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रेस्पिरेशन हो रहा है. स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो ही ये दोनों प्रोसेस वो प्लांट कर पा रहा है. एंड बोथ द प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. क्लियर. देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि इट मेंटेन टर्गर ऑफ द सेल. जो सेल की टर्जिडिटी है उसको मेंटेन करता है. ओके. देन ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ लीफ. लीफ का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए एंड इन इम्पार्टिंग कूलिंग इफ़ेक्ट. मतलब प्लांट के नीचे जाते हैं हम लोग तो हम लोगों को कूल इफ़ेक्ट होता है, कूलिंग इफ़ेक्ट आता है प्लांट्स के नीचे जाएंगे तो. द ट्रांसपीरेशन की वजह से है ये. ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ लीफ. लीफ का टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं वो लोग एंड इन इम्पार्टिंग कूलिंग इफ़ेक्ट. This is important as per need point of view students. Then disadvantages क्या है कि excessive transpiration leads to wilting and injury in the plant. अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो वहाँ पे विल्टिंग एंड इंजरी मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट डल हो जाएगा और प्लांट को इंजरी होगी. ओके. इट मे ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट. तो ये है ट्रांसपीरेशन का डिसएडवांटेज. वी हैव स्टडीड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ट्रांसपीरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल. ओके, व्हाट इज़ अ नेसेसरी एविल देखते हैं अभी हम लोग क्या है वो. फॉर स्टोमेटा